Hello friends, how are you? So in the previous lecture we people have studied about the estimation of errors and combination of errors. Today in this lecture we people are going to study about the numericals based upon the topics we have studied till now on the basis of the chapter that is units and measurement. So let's study about the numerical problems. Here we have the example from your NCERT textbook, that is 2.1, in which he is saying that calculate the angle of 1 degree, 1 minute and 1 second of arc or arc second in radian. Use 360 degree is equals to 2 pi radians, 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. तो इसका यूज करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां पे 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड की इन टर्म्स ऑफ रेडियन. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड? सो लेट्स सॉल्व इट. एज वी हैव गिवन 360 degree is equals to 2 pi radian. So what about 1 degree? So which implies 1 degree will be equals to 2 pi by 360 radian. Okay, क्योंकि 360 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 360 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और which implies 1 degree is equals to how much? Pi by 180 radian. Okay, तो पार्ट ए में क्या बोल रहा है कि 1 डिग्री को वहां पे इन टर्म्स ऑफ रेडियन जो है हमें एक्सप्रेस करना है. एंगल ऑफ 1 डिग्री, तो एंगल ऑफ 1 डिग्री कितना हुआ? पाई बाई 180 रेडियन. एंड व्हेन वी डिवाइड इट, पाई को अगर हम वहां पे 180 से डिवाइड करते हैं, सो देयरफॉर 1 डिग्री विल कम्स आउट टू बी 1.745 into 10 s power minus 2 radian. Okay, so this is the answer of part A. In this way we will solve. Clear? Now what about B part? In B part we have to find the angle of 1 minute. ठीक है, तो what about 1 degree? Now 1 degree is equals to how much? Minute. तो यहाँ पे हम पार्ट बी का सॉल्यूशन करेंगे. एज वी हैव हाउ मच? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है? 60 मिनट के इक्वल. ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. तो 60 मिनट किसके इक्वल हुआ? दैट इज पाई बाई 180 रेडियंस के. ठीक है, और विच इंप्लाइज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 मिनट का मतलब 1 मल्टीप्लाई 60, 1 मिनट मल्टीप्लाई 60 तभी हुआ 60 मिनट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 60 नीचे आ जाएगा, 60 इंटू 1 180 रेडियंस. ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट? So value will comes out to be 2.91 into 10 s power minus 4 radians. Okay, so in this way this 1 minute will be equals to. Clear? Now let's solve the C part. In C part what we have given, we have to calculate the angle of 1 second. So here we will write as 1 minute is equals to 60 seconds. Okay, so अगर यहाँ पे इसको हमें इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूँ in this way, if I denote it by equation number 2, therefore from equation 2 what we get? equation 2 क्या मिला हमें? that is 1 minute है, 1 minute को कैसे लिख सकता हूँ? that is equals to 60 second. तो हम इस तरह से लिख देंगे, that is 60 second is equals to pi by 60 into 180 radians, or which implies that is 1 second into 60 second. So 60 second को कैसे लिख सकते हैं? 1 second multiplied by 60.
that is equal to 60 seconds. So 1 second will be equals to pi by 60 into 60 into 180 radians, and this 1 second will comes out to be then 4.85 into 10 is power minus 6 radians. Okay, so in this way we can find the answers. Clear? Once again repeating, the question was calculate the angle of 1 degree, 1 minute and 1 second, okay, in radians by using 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल है. तो by making use of these values we have calculated the answers. Okay, now let's move to the second question. Yes, in the second question, he is saying that a man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. कि कोई आदमी है वो estimate करना चाहता है distance of a nearby tower from him. कि man जो है he wants to measure the distance of tower, ठीक है, जो कि उससे कुछ दूरी पे है. तो he stands at a point A in front of the tower C. टावर का वहां टावर कहां पर है, पॉइंट सी के ऊपर है, उसके सामने वो खड़ा होता है एंड स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद AC. और वहां पे एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है, ओ को, जिसका कि नाम ओ रखा है, सॉरी इट इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ एंड इट इज इन लाइन विद AC. ए पॉइंट पे पर्सन खड़ा है, सी पॉइंट पे टावर है और AC लाइन में वो ऑब्जेक्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है. He then walks perpendicular to AC. Person then walks perpendicular to AC to point B. For example, यहाँ पे हमारा टावर है, यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है. मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको इस तरह से. दिस इज ऑब्जेक्ट. तो ये डिस्टेंस AC फाइंड आउट करना है. तो बोलता है मैन वॉक्स परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस. परपेंडिकुलर कितना, AB डिस्टेंस पे जाता है, ठीक है, AC अप टू पॉइंट B एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. और ये जो डिस्टेंस है वो दिया गया 100 मीटर. एंड लुक्स एट O एंड C. और फिर O को देखता है और C को देखता है. सिंस O इज वेरी डिस्टेंट, कि O जो है वो बहुत दूर है, ओके, द डायरेक्शन BO इज प्रैक्टिकली द सेम एज दैट ऑफ AO. बोलता है कि ये जो डायरेक्शन AO की होगी वही वहां पर AO और BO की सेम रहेगी. But he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle of 40 degree. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो line of sight है ये वहां पे कितने डिग्री टर्न हो जाती है, 40 डिग्री से, ठीक है, इस तरह से थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया है. Estimate the distance of the tower C from the original position A. So we have to find the position of this tower from position A. So how we can solve it? Let's study about it. Now look at here. I am drawing the situation here. This point C, here the tower is there at point C. The person is lying at point A. Here the person is standing. Okay. Now, this is the line of sight of AC. Now, person standing at point A, observe the distant object O. ये distant object है O, ठीक है. After that, he walks perpendicular to AC and goes up to the point B, and this point B, up to the point B he has covered the distance of 100 meter. Okay, so बोलता है the line of sight, this changes from original line of sight by an angle of 40 degree.
तो यहाँ पे जब बी पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है ओ और सी को, ठीक है। तो ओ और सी को ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई हम मान लो मून को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर आप 100 मीटर का डिस्टेंस भी कवर करते हैं तो मून का तो पोजीशन वही लगेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी सिचुएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, that is 3,84,000 kilometer. Okay, so this point C and O, ये वाला डिस्टेंस AO और ये वाला डिस्टेंस, they will appear to be same, but reaching at point B, जैसे B पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट थी ना, ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट क्या थी? AC, क्योंकि ऐसे करके टावर को देख रहा था, तो ये चेंज होगी। How much it has changed? It has changed by an angle of 40 degree. ये theta 40 degree change हो गया। Now if this angle is theta, then this angle will also be equals to theta. It is given to us 40 degree. We want to calculate this distance. Okay. So what about this distance? Here we will write in right angle triangle, कौन सा? CAB में और BAC में what we have, tangent of angle 40 degree, that is theta, that will be equals to AB over BC. We want to calculate this AB over AC होगा, AB over AC. So we want to calculate AC, which imply AC is equals to AB over टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री। अब नेचुरल टेंजेंट्स में इसका वैल्यू देखना है और यहाँ पे पुट करना है। बट अबाउट AB, दैट इज इक्वल्स टू 100, और नेचुरल टेंजेंट्स 40 डिग्री में अगर इसका वैल्यू देखें तो इट विल कम्स आउट टू बी 0.8391, 0.8391, ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 911 मीटर। Clear? After dividing it, we got its value as 119 meter. This is 119 meter. Okay, so in this way we will solve this second problem of NCERT example 2.2. Now let's move ahead. The third example. Okay, in this exercise what we have given, the moon is observed from the two diametrically opposite points A and B on the earth. Okay, the angle theta subtended at the moon by the two directions of observations is 1 degree and 54 minutes. Given the diameter of the earth to be 1.276 into 10 to the power 7 meter, compute the distance of moon from the earth. डिस्टेंस ऑफ मून फाइंड आउट करना है, कहां से? अर्थ से। दिया क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मून को वहां पे ऑब्जर्व करा गया है, टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। तो यहां पे देखो, लेट अस कंसीडर हियर एट दिस पॉइंट द मून इज देयर एंड दिस मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, A and B on the earth, the angle subtended at the moon by the two directions. ये AB diameter जो है ये हमें दिया हुआ है, how much? That is 1.276 into 10 to the power 7 meter. तो बोलता है ये जो एंगल है ना, ये कितना आ रहा है वहां पे? That is यहां से ऑब्जर्व करा और यहां से। So this angle theta is given to us. How much? This is 1 degree and 54 minutes. ठीक है। Compute the distance of moon from the earth. We want to calculate this distance. अब बोला कि ये एंगल थीटा कैसे आया, तो वहां पे आपने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा बेटा। तो पैरेलैक्स मेथड में क्या था कि जो हमारा कोई नियर बाय स्टार था
ठीक है, वहां पे पहले हम टेलीस्कोप को फिक्स करते, वहां से जो लाइट रेज आ रहा था फिर मून की तरफ उसको टर्न करते टेलीस्कोप को, तो जो उसने एंगल टर्न करा लेट अस कंसीडर इट इज थीटा 1. अब अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सो आफ्टर 6 months व्हाट वुड हैपन, दिस पॉइंट ए विल बी diametrically opposite. ठीक है, so at reaching point B we will again observe that star. ठीक है, उस स्टार को हम ऑब्जर्व करते थे और उस एंगल को फिर से मेजर करते थे, लेट दैट बी थीटा 2. तो थीटा किसके इक्वल था हमारे पास, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये था. ओके, अच्छा अब हमारे पास क्या क्या दिया है, गिवन वी हैव गिवन एंगल दिया है 1 डिग्री 54 मिनट. अच्छा बोलता है बट 1 डिग्री तो 60 मिनट के इक्वल है, तो हम इसको 1 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री किसके इक्वल, 60 मिनट और साथ में 54 मिनट वहां पे ऐड कर दो इसमें. ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री 54 मिनट है तो कलेक्टिवली ये जो 1 डिग्री 54 मिनट है उसको मैं इस तरह से लिखूंगा 4 और 6 और 5 11, तो 114 मिनट्स आया. बट एंगल तो मुझे एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. ये याद रखना 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 54 मिनट लिखा तो कलेक्टिवली इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 114 मिनट्स. ओके, तो थीटा का वैल्यू 114 मिनट्स आ गया. अब मिनट को वहां पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बोलता है बट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10 पावर कितना आ रहा था, -4 रेडियन, ये आ रहा था. तो वैल्यू पुट कर दिया 114 इंटू 2.91 इंटू 10 पावर -4 रेडियंस. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी थीटा की. क्लियर. अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में बोलता है नाउ एज वी नो दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क, this arc AB over radius कितना D. So what we wish to calculate, we wish to calculate this D. So D will be equals to AB by theta. So AB by theta जब करेंगे तो which implies distance D is equals to AB. What about the value of AB? It is given to us 1.276 into 10 power 7 divided by theta. Theta कितना वैल्यू पुट करा इसका, इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 3.32 इंटू 10 पावर -2. ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3.32 टू 10 पावर -2. तो इसका वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे. सो दिस डिस्टेंस विल कम्स आउट टू बी 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर. कैलकुलेटेड वैल्यू यस 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर. अब देखो ये डिस्टेंस हुआ किसका, मून का, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से. अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 384,000 किलोमीटर लिख सकता हूं. कैसे, ये बना हमारे पास 384, 10 पावर -2 होगा तो यहाँ पे कितना बचा 10 पावर 6. अब किलोमीटर में कितना होता है 10 पावर 3, तो 384 इसको ब्रेक करके लिखा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 मीटर. तो ये वाली चीज है, ये किलोमीटर बन जाएगी और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 3,84,000 किलोमीटर. दैट्स व्हाई दिस इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स. ओके, in terms of meter 3.84 into 10 power 8 meter, that is the distance of moon from the earth, and in terms of kilometer that will be 3,84,000 kilometer. So in this way we will solve. Okay, you can write down this solution. Okay, now let's move to the next numerical example 2.4. Yes. So in the statement what we have given, the sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds
the distance d of the sun from the earth is 1 astronomical unit, ठीक है. Then what is the diameter of the sun? Diameter of sun find out करना है, ठीक है. तो कैसे करेंगे? Then solution, what we have, sun's angular diameter. Okay, this is sun. So angular diameter is this one. So what we want to find out, diameter of the sun. So let us consider the diameter of the sun is denoted by small d. This is AB, and here I am writing it is sun. Okay, so angular diameter is given to us. This angular diameter is the angle subtended to observe the diametrical opposite points of the sun from the surface of earth, like as, इस तरीके से ये अर्थ है, अर्थ से वहां पे उसको ऑब्जर्व करा गया है टू अपोजिट पॉइंट्स. तो एंगुलर डायमीटर हमारे पास दिया गया है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 1920 seconds. This small d we wants to calculate. Capital D is given to us, that is 1.496 into 10 is power 11 meter. So how we can solve it? So here we will write given, क्या क्या दिया है, theta is equals to 1920 seconds, and this will be equals to 1920 into 1 second. अब 1 सेकेंड का वैल्यू पुट करना है क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 इज पावर -6 रेडियंस. तो ये हमारे पास थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके रेडियंस में. फिर डी दिया हुआ है 1.496 इंटू 10 इज पावर 11 मीटर. व्हाट वी वांट्स टू कैलकुलेट दिस डायमीटर ऑफ सन. तो फार्मूला वही, एज we know that angle is equals to arc AB over radius, ठीक है. Let us consider this is the observation point. So radius OA, तो AB कितना, small d, और radius OA कितना, that is equals to capital D. So which implies D is equals to theta into D. So in the next step, therefore D will be equals to angle कितना आया, 1920 into 4.85 into 10 is power -6 multiplied by this capital D, 1.496 into 10 is power 11. Okay, so its calculated value, ये जो D है, it will comes out to be, multiply करके हमारे पास वैल्यू इसका आ जाता है 1.39 into 10 is power 9 मीटर. तो इतना इसका यहाँ पे डायमीटर होगा सन का. ओके, सो इन दिस वे we will solve this numerical. Now let's move ahead to the next example. The question is, if the size of the nucleus in the range of 10 is power -15 to 10 is power -14 मीटर, कि बोलता है अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ ए शार्पिन. बोलता है इस साइज को अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ, टिप ऑफ द शार्पिन. स्केल्ड मतलब उसको वहां पे छोटा कर दिया गया, कितना छोटा कि उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं शार्प पिन की तरह. व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम. तो बोलता है रफली जो साइज ऑफ एटम है तब कितना होगा, ठीक है. assume tip of the pin to be the range 10 is power -5 meter to 10 is power -4 meter. और बोलता है मान लो जो टिप है, पिन की जो टिप है उसका रेंज कितना है, 10 is power -5 to 10 is power -4 meter. Okay, so how we can solve it. Scaled up to मतलब उस स्केल को देखो, 10 is power -15 मीटर कितना छोटा है और 10 is power -5 कितना बड़ा है, ठीक है. बड़ा हुआ 10 is power -5 कंपैरिजन टू 10 is power -15.
तो मैं इस स्केल को ले रहा हूं यहाँ पे, तो हुआ क्या, बेसिकली मैग्निफिकेशन हुई है एटम के साइज की। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज ये, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, और टिप ऑफ पिन का साइज कितना, 10⁻⁵ मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट मैग्निफिकेशन is equals to, किसके इक्वल है मैग्निफिकेशन, दैट इज साइज ऑफ द टिप ऑफ द पिन, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यही हुआ ना कहने का मतलब, साइज ऑफ टिप ऑफ पिन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो साइज ऑफ टिप ऑफ पिन 10⁻⁵ मीटर ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर ले रहा हूं। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट 10⁻10। ये मैग्निफिकेशन हुआ, ठीक है। अब एक्चुअल साइज कितना है वहां पे एटम का, ठीक है। सो यही पूछ रहे हैं ना, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। तो साइज ऑफ एटम कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सो एपरेंट चेंज इन द, या एपरेंट साइज ऑफ द एटम विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻10 को 10⁻10 से वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इन दिस वे वी विल गॉट द आंसर। नाउ हियर वी कैन राइट actual size of the atom is equals to 10⁻⁻10 meter. Okay, now this atom is magnified कितने 10⁻10 times, and as it magnifies to, क्योंकि न्यूक्लियस को वहां पे मैग्नीफाई करा गया तो नेचुरली एटम भी मैग्नीफाई होगा। So as it magnifies to, कहां तक magnifies, up to, magnifies to, I will write 10⁻10 मीटर तक, ठीक है, सॉरी, magnifies to 10⁻10। So therefore apparent मतलब change in the size of atom will be equals to 10⁻⁻10 meter multiply 10⁻10, that is equals to 1 meter. Okay, in this way we will solve. एक बार फिर से देखेंगे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस का रेंज दिया था और उस न्यूक्लियस को वहां पे मैग्नीफाई करा गया, कहां तक, 10⁻⁻5 मीटर तक, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि what roughly is the size of atom। देखो न्यूक्लियस मैग्नीफाई होगा तो अंडर दैट कंडीशन व्हाट वुड हैपन, एटम भी मैग्नीफाई होगा, ठीक है। सो हियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्नीफाई करके ये हमारा इमेज का काम करेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना था, वो तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो 10⁻10 आ गया। अब एक्चुअल साइज ऑफ एटम कितना है, इतना, और मैग्नीफाई कितना हुआ, 10⁻10। Therefore, apparent change in the size of atom will be equals to 1 meter. That is the required answer. Now let's move to the next question. Look at here. Example 2.6. The two clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12 noon. By the standard clock, the readings of the two clocks are given to us throughout the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ये सारे throughout the week हमें readings दी हैं दो clocks की। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में 12 बजे उन दोनों क्लॉक से टाइम मेजर करा गया। क्वेश्चन इज, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स
precision time interval measurements, which of the two clocks will you prefer? एक बार फिर से देख लीजिए कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में वहां पे 2 क्लॉक्स दी गई हमारे पास, उनको टेस्ट करा गया, ठीक है, उनका टाइम 12 बजे, दिन के 12 बजे थ्रू आउट द वीक। द क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं जिसमें कि प्रिसिशन टाइम इंटरवल जो मेजरमेंट का दैट इज रिक्वायर्ड, देन विच ऑफ 2 क्लॉक्स विल यू प्रेफर? तो इनमें से कौन सी क्लॉक आप प्रेफर करेंगे? ओके, सो क्लॉक्स वो प्रेफर करेंगे जिसमें कि वहां पे प्रिसिशन ज्यादा हो। प्रिसिशन मींस माइन्यूट एक्यूरेसी हो वहां पे। ओके, प्रिसिशन मतलब सूक्ष्म, वहां पे शुद्धता होनी चाहिए उसमें। मींस टू से द रेंज ऑफ द इंटरवल वेरिएशन इन द व्हाट वी कैन से वेरिएशन इन द रेंज ऑफ द टाइम मेजर्ड बाय द 2 क्लॉक्स, जिस क्लॉक में छोटा होगा दैट विल बी मोर प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रेंज है उसका दैट विल लाइज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो वेरिएशन ऑफ द टाइम अगर फर्स्ट क्लॉक में अगर मैं देखूं तो रेंज फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे थ्रू आउट द वीक देखें, क्लॉक 1 की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम हमारा आ रहा है 12, ठीक है, 12:01 और 50 सेकेंड, ये मैक्सिमम। और मिनिमम कितना इन सभी में? 11:59 एंड 8 सेकेंड, 11 hours 59 minutes and 8 seconds, ठीक है। तो here I will calculate the range of the time measured by the clock 1. Range of time measured by clock 1 is equals to how much? 12 hours 1 minute and 50 seconds। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जो मिनिमम टाइम उसने मेजर करा, और सभी में यहाँ पे देखें तो 11 hours 59 minutes और कितने सेकेंड्स? 8 seconds, ठीक है। ये दोनों इंटरवल है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखो 50 में से 8 गए, 42 सेकेंड्स। यहाँ पे देखो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 59 मिनट नहीं जाएंगे, तो ये क्या है? आवर्स। तो यहाँ से अगर मैं 1 आवर लेता हूँ तो 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो ये कितने रह जाएंगे? 11, और यहाँ 60 ऐड होके तो कितने बन जाएंगे? 61 मिनट्स, ठीक है। तो 61 में से वहाँ पे 59 मिनट अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी 2 minutes and 42 seconds, और यहाँ पे 0 0। कहने का मतलब दिस इज इक्वल्स टू, अब 2 मिनट है तो ये आया 2 मिनट और 42 सेकेंड्स, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स है, ठीक है। तो 2 मिनट किसके इक्वल होंगे? दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो टाइम इंटरवल ऑफ 2 मिनट एंड 42 सेकेंड्स, इसको अगर टोटल सेकेंड में लिखना है तो 60 दूने 120, 120 में अगर मैं ये ऐड कर दूं तो इट विल बी 162 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 162 सेकेंड्स। ये आया रेंज ऑफ टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक 1। अब अगर मैं रेंज ऑफ द टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक 2 फाइंड आउट करूं तो वो कितना होगा? ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर कर देना हमें। ओके, सो हियर ये हमारे पास आ गया। ये लग गया ना पता आपको कितना हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करा? तो इसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे मैं फिर रेंज ऑफ टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक 2 फाइंड आउट करूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको अभी यहाँ पे, दैट इज 162 सेकेंड्स। इन द सेम वे नाउ आई विल राइट एंड रेंज ऑफ टाइम मेजर्ड बाय क्लॉक 2 इज इक्वल्स टू, अब वो देखो क्लॉक 2 में आ जाओ, क्लॉक 2 में मैक्सिमम और मिनिमम देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? दैट इज 10 hours 15 minutes and 24 seconds. This is the maximum value. And what about the minimum value? मिनिमम देखूं तो यहाँ पे कितना है? 10 hours 14 minutes and 53 seconds, ठीक है। दिस इज द मिनिमम।
तो हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम 10 आवर 15 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स और मिनिमम 10 आवर्स 14 मिनट एंड 53 सेकेंड्स। तो देखो सबट्रैक्ट करना है क्योंकि रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। 54 में से 24 में से 53 नहीं जाते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 मिनट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने 14 मिनट रह गए और 60 इसमें ऐड होके ये कितना हो गया 84। अब 84 में से 53 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आया 1 और यहाँ पे कितना बचा 8 में से 5 गया 3, आगे 0, यहाँ पर भी 0। So it will comes out to be range of time measured by the clock to 31 second. ठीक है, since the range of the time measured by the clock 2 lies near to the true value, so that's why the clock 2 is said to be more precise. ठीक है, so यहाँ पे जो clock 2 है उसको हम वहां पे क्या करेंगे, देखिए रेंज जो है हमारे पास, हाँ यस, दिस वैल्यू इज लाइंग क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, क्योंकि रेंज जो है वो बहुत कम आ रहा है। इसमें देखो 162 मिनट का वेरिएशन आ रहा है टाइम में और इसमें 31 सेकेंड का। सो दैट्स व्हाई वी विल प्रेफर क्लॉक 2 फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द टाइम। ओके, सो हियर वी विल राइट since time measured by clock 2 is more precise as it lies close to the true value. So therefore clock 2 is preferred. ठीक है, रेंज का लग गया पता, रेंज कैसे फाइंड आउट करनी, ये इंटरवल देखना है, मैक्सिमम देखना और मिनिमम देखना है। ठीक है, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट इट। चलो, तो ये हमारा एग्जांपल था 2.6। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल example 2.7. Okay, now it is based upon the topic which we have studied in the previous lecture. Question is, we measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements the reading turns out to be 2.63 seconds फर्स्ट। ठीक है, टाइम पीरियड का जो है ऑसिलेशन इतना आ रहा है 2.63 सेकेंड्स, देन 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट एरर? Magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity, that is what we call absolute error. What about relative error? Defined as the ratio of the, ratio किसका, mean value of the absolute error to the true value. ठीक है, that is what we call relative error. And what about percentage error? When relative error is expressed in terms of percentage, then the error is called as a percentage error. So let's solve it. तो सबसे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमें बेटा क्या देखना होता है कि वहां पे ट्रू वैल्यू किसी क्वांटिटी का दिया है या नहीं। So true value is not given to us. Under that condition we finds the true value. तो ये दिया क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब हमें मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। ओके, सो हियर आई विल कैलकुलेट दैट इज टाइम पीरियड, that is mean time period of the oscillation, that will be equals to 2.63
plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80 divided by how many measurements are these? 5. 1 2 3 4 5. ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे और वहां पे सब्ट्रैक्ट ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे. So after adding and dividing it, we got its value as 2.624. ऐड करने पर हमें मिलेगा 13.12 by 5 and its value will comes out to be 2.624. अब देखो हमारे पास जितना भी रीडिंग्स हैं दे आर अप टू द डेसिमल के कितने प्लेसेस तक है? 2 प्लेसेस तक उनका रेजोल्यूशन. ठीक है, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसका रेजोल्यूशन है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. तो हमें जो मीन वैल्यू आया है उसको भी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एक्सप्रेस करना पड़ेगा. ओके, सो हियर वी कैन राइट और टी मीन इज कमिंग आउट टू बी 2.62. व्हाई? क्योंकि जो मेजरमेंट्स करी गई है टाइम पीरियड की जिस इंस्ट्रूमेंट से उसका रेजोल्यूशन कितना है? डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर मीन. तो T1 कितना दिया है हमारे पास? यहाँ पे लिख दो जो भी हमारे पास T1 दिया था. T1 कितना? 2.63. व्हाट अबाउट T2? 2.56. व्हाट अबाउट T3? 2.42. व्हाट अबाउट T4? 2.71. व्हाट अबाउट T5? 2.80. साथ में यूनिट भी यूज करेंगे सेकेंड्स. तो ये मीन आ गया. अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है नेक्स्ट स्टेप में? वी वांट्स टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? फर्स्ट मेजरमेंट में दैट इज T1 माइनस टी मीन. सेकेंड मेजरमेंट T2 माइनस टी मीन. थर्ड में T3 माइनस टी मीन. फोर्थ में T4 माइनस टी मीन. फिफ्थ में T5 माइनस टी मीन. तो दैट वे वी विल गेट द एब्सोल्यूट एरर. सो नाउ absolute errors in the measurement in the next step. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. Now delta T1. ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू. ये तो T1 कितना हमारा यहाँ पे? 2.63. इसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2.62. सो व्हाट वी गेट? 0.01. 0.01 seconds. What about delta 2? T2. That will be mod of T2 minus T mean. Okay. So it will be equals to T2 का वैल्यू कितना है? अब और देखो. What about the value of T2? 2.56 और T mean 2.62. सब्ट्रैक्ट करा तो देखो 62 बड़े हैं 56 से. तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस 0 पॉइंट कितना? 12 में से 6 गए 6. माइनस 0.06. तो माइनस होगा तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 0.06 सेकेंड. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से बाहर आ जाएगा. मॉड से बाहर जब नेगेटिव साइन आता है तो इट विल बिकम पॉजिटिव. नाउ डेल्टा T3 दैट विल बी मॉड ऑफ T3 माइनस T मीन. इट विल बी इक्वल्स टू T3 कितना है? 2.42 है सेकेंड्स. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 2.62. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये क्वांटिटी बड़ी है तो नेगेटिव ऑफ कितना? 2 में से 2 गए 0 यानी कि 0.20. तो दिस इज नेगेटिव आया तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.20 सेकेंड्स. ये डेल्टा T3 आया. Now what about delta T4? Delta T4 that will be करो इसको that is T4 है ना माइनस ट्रू वैल्यू 2.62. तो this will be equals to ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस माइनस T मीन एंड इट विल बी कम्स आउट टू बी 11 में से दोगे 9. ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो इट 0.09 seconds. Next delta T5.
that will be T5 minus T mean. तो कितना आया, T5 कितना है 2.80 माइनस T मीन करा 2.62 सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 था, 7 में से 6 गया 1, तो 0.18 सेकेंड, 0.18 seconds. So in this way we people have calculated the absolute errors, okay, 0.01 second in delta T1 minus 0.06 उसका मैग्नीट्यूड लिया तो ये आ गया हमारे पास, फिर 0.20 in this way. Now we wants to calculate the average absolute error. So what about the average absolute error? How we can calculate it? So now as average absolute error delta T का मीन वो किसके इक्वल होगा, that will be equals to delta T1 plus delta T2 plus delta T3 plus delta T4 plus delta T5 divided by 5. Okay, तो ऐड करेंगे 0.01 plus 0.06 plus 0.20 plus 0.09 plus 0.18 divided by 5. It will be equals to, after taking its mean, we got the value that is 0.11 second. 0.11 सेकेंड डेल्टा टी मीन. अब देखो मीन आ गया ये हमारे पास, ओके, तो हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू है उसको कैसे लिख सकते हैं, टी मीन प्लस माइनस 0.11 सेकेंड. ठीक है, सो एक बार फिर से देखिए, आगे फिर सॉल्व करते हैं इसको, कि हमारे पास वहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस दिए थे, 5 टाइम पीरियड्स दिए थे, ट्रू वैल्यू नहीं दिया था. बोलता है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, सभी को ऐड करके जितनी नंबर ऑफ हमारे पास ऑसिलेशन है, ठीक है, उससे वहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 2.624 आ गया. अब बोलता है लेकिन the device with which we have measured these time periods has its resolution up to 2 decimal places, so that's why we have rounded off this mean value up to the decimal 2 places. So what we get, T mean is equals to 2.62 seconds. Now delta T1, absolute error in the first measurement, second, third, fourth and fifth measurement find out करा. ठीक है, तो magnitude of difference between individual value and the true value ये होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई. उसके बाद मीन फाइंड आउट करा एब्सोल्यूट एरर्स का, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 0.011 सेकेंड्स. ठीक है, नाउ वी वांट्स टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या, डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर. Now, as relative error किसके इक्वल होगा, that will be delta t mean divided by t mean. तो डेल्टा टी मीन कितना हमारे पास 0.11 सेकेंड, 0.11, और टी मीन कितना 2.62 सेकेंड्स और सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा यूनिट, and we got the relative error that comes out to be, डिवाइड करके जब लेंगे तो its value will comes out to be 0.041, 0.041. ये आ गया relative error. So what about the percentage error? What about the percentage error? Percentage error का फॉर्मूला क्या, relative error expressed in percentage. So therefore percentage error is equals to 0.041 multiplied by 100% करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, that is
4.1%. That will comes out to be our percentage error. Okay. Now we can write in terms of the given reading. So therefore, time period in terms of अगर बोले एब्सोल्यूट एरर तब कैसे लिखा जाएगा? That will be written as true value 2.62 plus minus, what about the absolute error? 0.11, ठीक है, seconds, and the time period in terms of percentage error. अगर परसेंटेज एरर में फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये रीडिंग लिखी जाएगी, जो मीन वैल्यू है 2.62 प्लस माइनस हाउ मच 4.1% आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, दैट इज 4%, तो दैट विल बी 4%, ठीक है, सेकेंड्स. इन दिस वे वी विल राइट द रीडिंग. कहने का मतलब कोई भी रीडिंग है उसमें ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या करना होता है? एब्सोल्यूट एरर. परसेंटेज एरर में भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल 2.7. नाउ let's study some numericals based upon the combination of errors. Example 2.8 is there, in which he is saying that the temperature of the two bodies measured by the thermometer are T1 is equals to 20 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius, and T2 is equals to 50 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. Calculate the temperature difference and the error therein. टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है और वहां पे कितना एरर है उसको फाइंड आउट करना है. तो लेट्स डू द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन द मेजरमेंट वन T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 इज गिवन टू अस 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. T1 भी दिया है, T2 भी दिया है. टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो पहले क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर डिफरेंस ये जो ट्रू वैल्यू है इनका लूंगा, ठीक है. उसके बाद एरर लूंगा, एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है. तो एब्सोल्यूट एरर चाहे एडिशन हो चाहे डिफरेंस हो, हम क्या करते हैं वहां पे ऐड ही करते हैं. तो हियर आई विल राइट द टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. T2 कितना 50 माइनस T1 कितना 20 इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर कितना कि टेम्परेचर फर्स्ट में कितना है, दैट इज यहाँ पे प्लस माइनस लिख दूंगा 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस. सो दैट विल कम्स आउट टू बी plus minus 1 degree Celsius. So therefore temperature difference in terms of absolute error, it will be equal to how much? 30 degree Celsius plus minus 1 degree Celsius. So this will be the required answer. In this way we will solve. Okay, let's move to the next example. Example 2.9. The resistance R is equals to V over I, where V is equals to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus minus 2 ampere is given to us. So बोलता है find the percentage error in R. Resistance में percentage error find out करना है. So in solution
first of all we will write what we have given. V voltage 100 plus minus 5 volt and I is equals to 10 plus minus 0.2 एम्पियर. तो परसेंटेज एरर इन आर फाइंड आउट करना है. ठीक है. सिंस आर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, वी ओवर आई के. ठीक है. तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमने वहां पे देखो रिजल्ट पढ़ा है, जेड इज इक्वल्स टू ए बाई बी अगर हो तो इसको इसका जो रिलेटिव एरर है वो कितना होता है, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी. इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिजल्ट. ठीक है. सो हियर व्हाट वी गेट, दैट इज देयरफॉर relative error in the measurement of resistance, that is delta R by R, will be equals to delta V by V plus delta I over I. अब ये डेल्टा V है क्या, ये जो हमारे पास वोल्टेज दी है ना, इसमें जो प्लस माइनस 5 है दैट इज एब्सोल्यूट एरर. In terms of absolute errors, these readings are given to us. Okay, so what about delta V, that is 5. What about V, that is 100, इस तरह से लिखा, प्लस what about delta I 0.2, what about I, that is 10. इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, that is 5 over 100 plus 2 by 100. ओके. अब ये तो आगे हमारे पास रिलेटिव एरर, यानी कि कहने का मतलब दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 और 2 7, नीचे 100. डेल्टा आर इज इक्वल्स डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 7 बाई 100. सो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन आर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%. ये होता है फॉर्मूला. तो डेल्टा आर बाई आर कितना आ रहा है, 7 बाई 100 into 100%. तो 100 से 100 कैंसिल हो गया. What we got, that is 7%. Okay, in this way we will solve this numerical. Now let's move to the next numerical problem. 2.10 here what he is saying, the question is two resistors of resistances R1 is equals to 100 plus minus 3 ohm. So we have given here the R1 100 plus minus 3 ohm. Okay, and R2 is equals to 200 plus minus 4 ohm. ये हमारे पास दिए हैं. आर कनेक्टेड इन सीरीज. पहले इन रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया गया, बी पार्ट में बोल रहा है इसको पैरेलल में लगाया जाता है. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए, कि जब सीरीज में लगाया गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है. एंड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा. रिलेशन यूज करना है, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. ठीक है. और बी में यूज करना 1 ओवर आर डैश इज इक्वल टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू. एंड डेल्टा आर डैश ओवर आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन ओवर आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू ओवर आर टू स्क्वायर. ये हमें वहां पे फाइंड आउट करना है. तो देखो पहले आपका कंसेप्ट रिफ्रेश करा देते हैं. तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस होती कैसे है, इस तरह से है. ठीक है. ये R1 है और ये R2 है. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2. 10th में आप पढ़ चुके हैं. ओके. फर्दर अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगाए गए, ये R1 और ये R2, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला 1 ओवर आर पी क्या होता है, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 ये होता है. तो इन फार्मूलों का यूज करके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है.
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन किस फॉर्म में दिए रजिस्टर हमारे पास, दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेस करना है वो भी किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो लेट्स स्टडी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पार्ट 1 वहां पे सॉल्व करते हैं। Solution to part A for series combination S, RS is equals to R1 plus R2 रहेगा। ठीक है, तो R1 plus R2 करता हूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये R1 और ये R2, साथ में एब्सोल्यूट एरर वहां पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं द टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 100 plus 200 ohm, that is equals to 300 ohm। ठीक है, अब आगे एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर इन R that will be in RS that will be equals to प्लस माइनस। देखो चाहे एडिशन है चाहे डिफरेंस है, एब्सोल्यूट एरर तो वहां पे ऐड ही होगा। सो हियर व्हाट वी गेट 3 plus 4 ohm, it will be equals to plus minus 7 ohm। So therefore net resistance in series, therefore net series resistance will be equals to, किसके इक्वल होगा, in terms of absolute error 300 plus minus 7 ohm। ये हमारे पास आंसर आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, बी पार्ट देखते हैं। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन सो एज वी हैव द फॉर्मूला 1 over r डैश, ये गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करना है 1 over r1 plus 1 over r2। 1 over r डैश डिनोमिनेटर में क्या आया r1 r2 और न्यूमरेटर में r2 plus r1। सो विच इंप्लाइज r डैश इज इक्वल्स टू r1 r2 over r1 plus r2। तो यहां से r डैश कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हमें दिया गया उससे डेल्टा r डैश कैलकुलेट करेंगे। सो r1 का वैल्यू कितना, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ r1, ये इस r की वैल्यू कर रहा है यहाँ पे बात, इस r की, एब्सोल्यूट एरर की नहीं, दैट इज 100 into 200 over r1 plus r1 plus r2। so what we get, that is equals to, किसके इक्वल आ जाएगा ये, okay, so here r dash will comes out to be, therefore r dash is equals to how much, this 100 into 200 divided by 100 plus 200, that is 300। so what would happen, this and this will get cancelled out, so what we get 200 by 3, तो 6 3 जा कितना हुआ 18। ठीक है, फिर तो ये आ जाएगा 66.7 ओम। इन दिस वे कैलकुलेटेड वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग वी गॉट इट्स वैल्यू एज दैट इज 66.7 ओम। ये r डैश मिल गया, बट हमें तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो किस में एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमारे पास वहां एक और फार्मूला दिया है, r डैश कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा r डैश। फर्दर एज फार्मूला इज गिवन टू अस, डेल्टा r डैश ओवर r डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा r1, फार्मूला दिया है, डेल्टा r डैश ओवर r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 ओवर r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 ओवर r2 का स्क्वायर।
ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, एंड वी विल कैलकुलेट इट। नाउ व्हाट वुड हैपन, इस r डैश को यहाँ ले आओ, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट डेल्टा r डैश, so it will be equals to r dash square over r1 square into delta r1 plus r dash square, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना सभी के साथ, ये जो r डैश स्क्वायर है इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू r2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा r2। ओके, कैसे आया, यहाँ पे लिख देंगे विच इंप्लाइज करके डेल्टा r डैश इज इक्वल्स टू r डैश स्क्वायर, और ये आ गया डेल्टा r1 ओवर r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 ओवर r2 का स्क्वायर। तो जब मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअल से तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, और इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट r डैश ओवर r1 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा r1 प्लस r डैश ओवर r2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा r2। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो r डैश का वैल्यू कितना, ये हमारे पास, ओके, दिस इज r डैश। व्हाट अबाउट r1, r1 का वैल्यू कितना 100 था वहां पे, ठीक है, सो देख लो यहाँ पे r1 वाज इक्वल्स टू 100, r2 इज इक्वल्स टू 200, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देना हमने यहाँ पे, इट विल कम्स आउट टू बी 66.7 ओवर 100 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा r1 कितना था 3 ओम प्लस 66.7 ओवर 200 का होल स्क्वायर इंटू 4 ओम। देखो ये हमारे पास दिया था r1 में 3 ओम और r2 में 4 ओम डेल्टा r2, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 और 4 लिखा। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी गॉट द वैल्यू एस डेल्टा r डैश इज इक्वल्स टू 1.8 ओम, ये हमारे पास डेल्टा r डैश का वैल्यू मिल गया। सो देयरफॉर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर नेट इफेक्टिव resistance in parallel combination will be equals to, in terms of absolute error, r dash plus minus delta r dash। r dash का वैल्यू कितना 66.7 plus minus delta r dash 1.8 ohm, so this will be our net resistance in case of parallel combination in terms of absolute error। okay, so in this way we will solve। ये फार्मूला हमारे पास दिया था, ये जो डिनोमिनेटर में r डैश है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और कैलकुलेट कर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Example, find the relative error in z if z is equals to a raised power 4 b raised power 1 by 3 divided by c d raised power 3 by 2। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, मतलब डेल्टा जेड बाई जेड फाइंड आउट करना है बाय मेकिंग यूज ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सो कैसे करेंगे, गिवन वी हैव जेड इज इक्वल्स टू a raised power 4 b raised power 1 by 3 डिवाइडेड बाय c d raised power 3 by 2, इस तरीके से। सो रिलेटिव एरर, देयरफॉर डेल्टा जेड बाई जेड क्या होगा, तो देखो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है ए बी जैसे मल्टीप्लाई, तो इसमें जो रिलेटिव एरर होता था वो कितना डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी लिखते थे, और अगर पावर रूल होता था ए रेस पावर एन तो उसमें कैसे लिखते थे डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू एन इंटू डेल्टा ए बाई ए। तो यहाँ पर भी साइमल्टेनियस रूल लगेगा। सो वी विल राइट हियर 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस प्रोडक्ट है ना इसलिए प्लस पावर है तो 1/3 आगे और डेल्टा बी बाय बी इस तरह से। फिर आगे
क्वोशंट रूल देखो, z इज इक्वल्स टू a बाई बी होता था, तो इसमें रिलेटिव एरर आता है डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाय बी। तो यहां पर भी इसी तरह से लिखेंगे बेटा हम, प्लस डेल्टा c बाई सी प्लस पावर है 3 बाई 2 इंटू डेल्टा d बाय डी। तो इन दिस वे वी विल फाइंड द रिलेटिव एरर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट part, last numerical of the topics up to which we have studied. These numericals today we have done. Example 2.12, the period of oscillation of simple pendulum. These are given to us. T is equals to 2 pi and root of L by G, ये दिया है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एल इज, मेजर्ड वैल्यू ऑफ जो एल है, एल यहाँ पे कैपिटल लिया है तो हम भी कैपिटल ले लेते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल्स टू 20.0 सेंटीमीटर एंड इज 1 mm एक्यूरेसी, मींस टू से डेल्टा एल जो दिया गया है वो 1 mm लेना हमें। 1 mm का मतलब क्या हुआ, 0.1 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस of the pendulum is found to be 90 seconds। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास t दिया है कितना, 100 ऑसिलेशंस और 90 सेकंड का टाइम लिया। ओके, यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन, मतलब डेल्टा t का जो वहां पे वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 सेकंड, और n 100 ऑसिलेशन है तो इस तरह से 100। What is the accuracy in the measurement of G? इसमें फाइंड आउट करनी है accuracy। Clear? So here first of all we need to calculate the time period। बोलता है as we know that time period is equals to total time for the oscillations, जितनी भी oscillations हुई हैं उनके लिए कितना टाइम लिया गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल टाइम मान लो t है और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है, n है। ये आ गया इक्वेशन 1। तो इसका अगर एब्सोल्यूट एरर लिखें तो इट विल बी डेल्टा t बाय n के इक्वल होगा। तो इफ आई डिवाइड द 2 बाय 1 देन व्हाट वी गेट, डेल्टा t बाय t दैट विल बी इक्वल्स टू t बाई n, सॉरी डेल्टा t बाई n, और ये जब डिवाइड होगा तो n ऊपर चला जाएगा और t नीचे आ जाएगा, तो n से n कैंसिल हुआ, व्हाट वी गेट डेल्टा t बाय t। तो हमारे पास डेल्टा t बाई t वहां पे मिल गया। ठीक है, अब यहां से डेल्टा t बाई t ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें किसके इक्वल मिला, डेल्टा t बाई t के। इसको कैलकुलेट करना है डेल्टा g बाई g को। ओके, so how we can calculate it, in the next step हमारे पास फार्मूला दिया गया है as, here I will write t is equals to 2 pi root of L by G। So what I will do, स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट दैट इज t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाय G। हमें G को सब्जेक्ट बनाना, तो विच इंप्लाइज G इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर t स्क्वायर। तो देयरफॉर अब इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा G बाई G में, ये तो डायमेंशनलेस है, इसको तो हम लेंगे नहीं, कांस्टेंट है, तो इट विल बी डेल्टा L बाई L प्लस पावर रूल लगा डेल्टा 2 इंटू डेल्टा T बाय T। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, लेंथ कितना था और उसमें एक्यूरेसी कितनी थी। तो हमारे पास डाटा दिया था L 20 सेंटीमीटर और एक्यूरेसी 1 mm। ओके, चलो ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम।
ये था 20 और इसमें 0.1 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर एल था, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना 1 सेकेंड था और टी कितना था 90 सेकेंड्स। सो सेकेंड से सेकेंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया हमारा। ओके, वी वांट्स टू कैलकुलेट डेल्टा जी बाई जी। तो डेल्टा जी बाई जी किसके इक्वल आएगा वो देखो। सो देयरफॉर डेल्टा जी बाय जी विल बी इक्वल्स टू, ये कितना आया, दैट इज 0.1/20 प्लस 2 बाय 90 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इट विल कम्स आउट टू बी 0.027। मैं इसको ऐसे लिख दूं, दैट इज 1/20 इंटू 0.1 प्लस 1 और ये 1/45, ठीक है। तो इट विल कम्स आउट टू बी 0.0, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गॉट इट्स वैल्यू एज 0.027। दिस इज डेल्टा जी बाय जी। So therefore, the percentage error in this measurement, delta G by G percent, that will be 0.027 into 100%, and that is equals to kitna 2.7% and approximately equals to 3%. Okay, so delta G by G percent कितना आ गया हमारे पास 3%। ये वहाँ पे relative error रहेगा in the measurement of G. So in this way we will solve these numericals. Okay students, so the topics till now we have studied up to the combination of errors. वहाँ तक आज आपको numericals करवाए गए। Similar numericals you can practice, okay, from your NCERT textbook. Thank you.